Hello everyone, welcome to PT Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 39th video in this series. It means कि हम already 38 questions जो highly repetitive हैं आपके real exam में आ चुके हैं students के. We have discussed those and now we are going to discuss the 39th video in this series. And first things first, now PT is accepted in UK, so you can achieve your dream of studying, working or settling in UK through PT, and 90% of Canadian universities now accept PT academic. And a new test, which is PT Home, has started. So if you are looking for family visa in UK, then you can achieve that through PT Home. My name is Bharat Prij. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT, and now in this video series we discuss the tips and tricks ताकि आप भी अपने target score को achieve कर पाएं, because there is no point of wasting money in PT, giving papers 13,000 14,000 rupees you are spending on papers but without any improvement. Do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on regular basis. So PT reading integrated question timer होता है, 32 to 41 minutes की होती है, and it has 5 question types, but it is not scored out of 90. The reading module is not scored out of 90, it is of 47 or 48 marks, okay? And today's topic, PT reading filling the blanks, is the second last question type in this order. This is the real PT reading scoring. If you see, the reading just contributes your 47 marks, or उसमें से reading filling the blanks are of 15 marks. It means that if you have 5 RFIBs or reading filling the blanks, they will be of 3 marks each. So that's why they are very important. Now, what is the strategy for solving reading filling the blanks? As per our big data analysis and artificial intelligence analysis, you have 2 to 2.5 minutes only कि जिसमें आपको अपनी एक reading filling the blank solve करना होता है. Does it mean that you have to read all the words, understand all the words, their meanings? क्या ये possible है 2 to 2.5 minutes में? The answer is no. And this is the number one mistake which a lot of students make, because they do not do skimming, and skimming is very important. In our institute online lectures, we tell you how to do the skimming. And this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds to go through this, and then we are going to discuss this. Okay. So over here, if you see, अगर आपने स्किम अप किया है, ये बहुत ज़्यादा vocab वाइज बहुत टफ है. बहुत सारे वर्ड्स तो आपको उनके मीनिंग्स ही नहीं पता होंगे, या फिर आपने पहली बार उन वर्ड्स को सुना है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्किम. क्यों स्किम करते हैं? टू अंडरस्टैंड द जिस्ट, टोन, राइट? पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव है, न्यूट्रल टोन है और एकेडमिक टोन है, as well as tenses, present tense hai, past tense hai, or ya future tense. And then second step we do is classification of options as per parts of speech. बहुत important hai parts of speech. We are going to see how useful they are, and we have a complete grammar course where we teach our students how to do this classification. Okay. So first of all, let's do the skimming in this. Genius in popular conception is inextricably tied up with precocity. Doing something truly creative, we are inclined to think, requires the freshness and exuberance and energy of youth. तो अगर अब आप ये देखिए कि कितना टफ है ये vocab वाइज, इट विल बी वेरी टफ. अगर आप इसी कारण डिमोटिवेट हो गए, या आपने कहा यार इतना टफ है मैं नहीं सॉल्व कर सकता या कर सकती, नो, it's not like this. I am going to improve your vocab because we have to improve vocab also, but it will be very simple if you follow our strategies, follow the basics. Conception क्या होता है? एक सोच या आइडिया, ओके?
इनएक्सट्रिकेबली क्या मतलब, इनसेपरेबल, जो अलग नहीं किया जा सकता। प्रिकॉसिटी, जिसको हम कहते हैं टाइम से पहले कोई चीज करना, इन सेंस इंटेलिजेंस वाइज, ठीक है, कि लोगों को 1 साल लगता है, आपने 2 महीने में कर दिया, सो इट्स लाइक दैट। प्रिकॉसिटी इज दैट। एक्सुबरेंस इज जब हम कहते हैं कि बाहर आ के निखरता है, राइट, लाइक बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो हो रहा होता है। सो सी, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ vocab wise, but we are going to see how to solve it. But what we are going to do is we are going to skim this, and blanks के 4-5 words पहले, blanks के 4-5 words बाद में are important. Okay, but one thing I want to tell you is British English rule, जहाँ पे numbers अगर आपने spelled out करने होते हैं तो आपको hyphen use करना है. And this is a British English grammar rule which we teach to our students. Okay, अगर आप यहाँ पे देखिए 25 hyphens में है, 32 hyphens में है, so it will help you to improve your writing scores also. जैसे 23 भी आपका या 21 भी आपका hyphens में है, तो always remember this rule. Okay, so अब first of all let's quickly skim through this. Okay, फर्स्ट लाइन की मतलब, हाँ, यहाँ पे जीनियस की कोई बात हो रही है कि ऑर्सन वेल्स ने अपना मास्टरपीस बना दिया था 25 इयर्स पे। हर्मन मेलविल ने पियानो का एक नंबर 9 जो ई फ्लैट मेजर है वो 21 पे राइट किया, राइट। लिरिक पोइट्री की बात हो रही है, राइट। Precocity has hardened into iron law. This is not iron, right? You have to improve your pronunciation also. This is going to be iron law. Okay, सो टी एस एलियट की बात हो रही है, उन्होंने अपना जो सॉन्ग लिखा 23 के ईयर्स में लिखा। जो पोइट्स हैं वो बहुत जल्दी पीक करते हैं, यंग पीक करते हैं, किसी रिसर्चर ने मेंटेन किया, बताया, फिर अनदर नेम लेके उनको बताया हुआ है कि जो ऑथर है फ्लो का, उनका जो लिरिक वर्स है इज रिटन बाय द यंग, राइट, मतलब जवानी में लिखा था। देन अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, अगेन एक पर्सन का नेम है, that lyric poetry is something where something is discovered early, right? Burns brightly and then peters out at an early age. Peters out. Peters out मतलब जैसे वो फ्लेम होती है, एकदम जलती है और फिर धीरे धीरे बुझनी शुरू हो जाती है. That expression is peters out. Okay? But आपको I hope थोड़ा सा समझ आ गया है. We are going to solve the blanks, but let's do the parts of speech classification. Talent. Talent is your noun, right? Industry is your noun. Key. Like key principle हम कहते हैं. Key objective. So this is going to be adjective. Intellectual. Intellectual property rights जैसे हम कहते हैं. Intellectual. Right? He is very intellectual. Intellectual is your adjective, right? Okay? Domain. Domain is your noun. Originality. कि original है कोई चीज, क्या होगा ये आपका? It is going to be your again noun. Okay, creativity, right? Noun. Icon, noun. Across, this is preposition. Time, noun. Age, noun. Through, preposition. Importance, अब जब हम कहते हैं कि कोई चीज important है, राइट, जब हम कहते हैं कि कोई चीज इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इज योर नाउन. अथॉरिटी, अथॉरिटी is also your noun. So we have done the parts of speech classification also. Now we will solve the blanks. So now अगर आप यहाँ पे देखिए कि wrote a book a year something his late 20s culminating मतलब finishing at 32. Okay, so late 20s means 28, 29 और 32 पे उसने अपनी बुक फिनिश कर ली. ओके, सो दिस इज अ रेंज, राइट, एक रेंज दी हुई है, और रेंज के लिए आप क्या यूज करोगे? जो आपको ऑप्शंस अवेलेबल है. अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर एज भी हो सकती है, यहाँ पे टाइम भी आंसर हो सकता है, बट रेंज के लिए दो वर्ड्स कौन से यूज हो सकते हैं? थ्रू या अक्रॉस. ओके, थ्रू या अक्रॉस. अब यहाँ पे देखिए, वैसे भी आपका टाइम और एज कंटेक्चुअली सेंस नहीं बनाएगा. रोट अ बुक अ ईयर एज हिज, ईयर टाइम हिज लेट 20s, नो. सो यहाँ पे आपको या तो अक्रॉस चूज करना है या थ्रू चूज करना है. अब दोनों का मीनिंग सेम होता है मोर और लेस. लाइक अक्रॉस क्या होता है? जब एक कॉर्नर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हो, राइट. थ्रू क्या होता है? वो भी होता है, बट अक्रॉस इज ऑलवेज ऑन द सरफेस. ओके, एंड थ्रू मीन्स बीच में से. अगर आप कहो जैसे टनल है, आप टनल के थ्रू होते हो, अक्रॉस नहीं होते हो. सो एज के बीच में से निकल के गुजरते हो, ऊपर से थोड़ी जाते हो, अगर आप उस वे में लेके जाइए इस कंटेक्स्ट को. सो दैट्स वाई it's going to be through. Okay,
So we are going to select this through his late 20s. Okay. Now अब यहाँ पे again number 9 in E flat major at the something of 21. अब यहाँ पे 21 क्या है, एक एज रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे पता चल रहा है? अगर कोई डाउट हो यहाँ पे देखिए, राइट। पैरेललिज्म का एक कंसेप्ट होता है। पैरेललिज्म मींस जो आपके वर्ड की एंड से पहले फॉर्म चल रही है, जैसे आईएनजी है एंड के बाद भी आईएनजी ही यूज होगी, और एसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो अब यहाँ पे आप टोन का भी पैरेललिज्म लगा सकते हो, कंटेक्स्ट का भी पैरेललिज्म चल सकता है। सो यहाँ पे एज दिया हुआ है, एज 32, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर और लेस द आंसर इज गोइंग टू बी एज। ओके, सो वी आर गोइंग टू select that also. Now let's move on to the next one. In some created forms like lyric poetry, the something of precocity has hardened. Okay, अब एक चीज, समथिंग ऑफ समथिंग। अब अगर आपने हमारे एसेस की क्लासेस अटेंड की हैं, आप एसेस इंप्लीमेंट करते हो जिस तरह से हम बोलते हैं, देन इट बिकम्स इजी, बिकॉज हम वहां पे जनरली क्या यूज करते हैं? मेंट, शन, राइट, ईडीज। सो कौन से वर्ड की फॉर्म वैसे सिमिलर है, वैसा वैसा। The something of precocity has hardened into iron law. Talent बेस फॉर्म है, इंडस्ट्री बेस है, की बेस है, इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हो, डोमेन कह नहीं हो सकता, बेस है, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, आइकन बेस है, अक्रॉस तो प्रेपोजिशन है, टाइम बेस है, इंपॉर्टेंस हो सकता है, और अथॉरिटी हो सकता है। अब हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? प्रिकॉसिटी की। प्रिकॉसिटी मतलब जो समय से पहले ही चीजों को इंटेलेक्चुअली समझ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? द टैलेंट ऑफ प्रिकॉसिटी हैज हार्डेंड। टैलेंट हार्डन होता है, क्या चीज आपकी पक्की बनती है? द आंसर इज गोइंग टू बी इंटेलेक्चुअल, नहीं हो सकता। ओरिजिनलिटी ऑफ प्रिकॉसिटी नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी ऑफ प्रिकॉसिटी नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं इन दोनों के बीच में, इंपॉर्टेंस और अथॉरिटी, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बात होती है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो सकती है, बट नहीं। यहाँ पे आप अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हो। ओके, so the answer for this one is going to be the importance of precocity. Always remember this aspect. Okay, now let's move on to the next one. Poets speak young. The something researcher जेम्स कफमैन maintains. अब यहाँ पे रिसर्चर क्या है? एक तरह से आपका नाउन है, राइट। नाउन से पहले क्या आ जाते हैं? एडजेक्टिव। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं इस लेक्चर सीरीज की, सो यू नो अबाउट दैट, या अगर आपने हमारा ग्रामर कोर्स अटेंड किया है, सो नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। सो अब आपके पास कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? रिसर्चर क्या है? आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या आते हैं? जनरली एडजेक्टिव्स, राइट। बट क्या इसमें कोई एडजेक्टिव है? लेट्स सी, रिविजिट वंस। टैलेंट नाउन, इंडस्ट्री नाउन, की एडजेक्टिव है, बट की रिसर्चर हो सकता है, राइट। नहीं होता, जनरली हम की रिसर्चर नहीं कहते हैं। इंटेलेक्चुअल रिसर्चर, इंटेलेक्चुअल रिसर्चर नहीं होता है, राइट। डोमेन नाउन, ओरिजिनलिटी नाउन, क्रिएटिविटी नाउन, आइकन नाउन, अक्रॉस प्रपोजिशन, टाइम नाउन, अथॉरिटी नाउन। अब यहाँ पे आंसर क्या है? थोड़ा सा टफ रहता है, बिकॉज आप यहाँ पे क्रिएटिव की बात कर रहे हो, यहाँ पे क्रिएटिव की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो रिसर्चर कंटेक्चुअली कौन सा होगा? इट्स गोइंग टू बी क्रिएटिविटी रिसर्चर। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो, तो इंटेलेक्चुअल रिसर्चर नहीं हो कहते हैं हम, बट यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही। इंटेलेक्चुअल इज समथिंग रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी की बात हो रही। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी creativity. Okay, and let's move on to the next one. Lyric poetry is a something where something is discovered early, burns brightly and then peters out. अब हम जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं? लिरिक्स पोइट्री इज अ सब्जेक्ट, राइट, या फिर आप एक फील्ड कह सकते हो। लिरिक पोइट्री इज अ फील्ड। अब फील्ड या सब्जेक्ट से रिलेटेड सिनोनिम कौन सा है आपके पास? डोमेन, राइट। डोमेन इज लाइक सब्जेक्ट और फील्ड। ओके, so lyric poetry is a domain where something is discovered early. अब क्या चीज वहां पे अर्ली डिस्कवर होती है? अब आप क्या डिस्कवर करोगे? यहाँ पे आप किस चीज की बात कर रहे हो?
इंडस्ट्री की। अब बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर इज अ इंडस्ट्री भी फिल करने की सोचते हैं, राइट, इज अ इंडस्ट्री। बट क्या आप यहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो? इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हो, राइट? नहीं, यहाँ पे तो आप मोर और लेस रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी बात कर रहे हो। क्रिएटिविटी इज नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल थिंग्स, ओके? सो यहाँ पे दैट्स वाई द आंसर इज गोइंग टू बी डोमेन। अब वेयर समथिंग इज डिस्कवर्ड अर्ली, अब समथिंग इज डिस्कवर्ड अर्ली, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज फिर से होते हैं कि यहाँ पे टैलेंट आएगा आंसर, किसी किसी को लगता है इंटेलेक्चुअल भी लगता है, ओरिजिनलिटी भी लगता है किसी किसी को, राइट? आइकन इज डिस्कवर्ड नहीं होता, टाइम और अथॉरिटी नहीं डिस्कवर हो रही। मोर और लेस स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं टैलेंट में, इंटेलेक्चुअल में और ओरिजिनलिटी में। और अब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं क्रिएटिविटी की। वो कंफ्यूज करते हैं क्रिएटिविटी बिकॉज समथिंग ओरिजिनल है तभी हम उसको क्रिएटिव कहते हैं। सो दे फिल इट एज क्रिएटिविटी वेयर ओरिजिनलिटी इज डिस्कवर्ड अर्ली। नो, यहाँ पे ओरिजिनलिटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप कह सकते हो क्रिएटिव और ओरिजिनल सेम होता है, ज़रूरी नहीं है। आप एक नई चीज़, ओरिजिनल क्या होता है? नई चीज़ जो इन्वेंट कर रहे होते हो। ज़रूरी नहीं है जो आप क्रिएटिव हो, आप पुरानी चीज़ों के साथ भी क्रिएटिव हो सकते हो। जैसे चंडीगढ़ में यहाँ पे बहुत फेमस प्लेस है रॉक गार्डन, वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएटिविटी शो करके कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे आप लगा लीजिए स्टेचूज बनाए हुए हैं, थिंग्स बनाई हुई हैं। तो अब वो क्रिएटिव है, पर क्या वो ओरिजिनल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? नहीं। सो इसीलिए क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी वन एंड द सेम थिंग नहीं है। बट क्रिएटिविटी के लिए क्या चीज़ चाहिए होता है? अब आप यहाँ पे देखिए बार बार क्या बात हो रही है कि यार वो उसने बुक लिख दी, बड़ा टैलेंटेड था वो, ठीक है, राइट? यहाँ पे उसने लव सॉन्ग इतनी जल्दी लिख दिया। पोइट्री के लिए क्या चाहिए होता है आपको? टैलेंट। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी टैलेंट ओवर हियर। ओवर हियर सी ऑलवेज रिमेंबर दैट जो हमारे रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ग्रामर के बेसिस पे सॉल्व होते हैं, बट साथ में आपके वोकैब के बेसिस पे भी सॉल्व होते हैं। और वैसे ही ये बहुत ज़्यादा वोकैब रिच रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक है, सो इसीलिए मोर और लेस इसमें सारे कंटेक्चुअली वोकैब के थ्रू ही आंसर्स सॉल्व होंगे। Okay, so now what is Marvel's reading filling the blank strategy? Marvel's reading filling the blank strategy is dependent on the context, okay? Lexical resource and grammar. Context में you have to see for the skimming कि आप skimming सही ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, forward reading, backward reading and tone. Tone is also important. In lexical resource, collocations, phrasal verbs, and vocabulary is important. And you had seen the importance of vocabulary, right? And then grammar. In grammar, we teach our students complete grammar course, और ये जो grammar course है वो आपको reading में ही नहीं बल्कि listening और writing में भी help करेगा. So it's quite important, especially अगर आपका target 8 bands है या फिर 7 bands हैं, okay? So in our grammar course, we teach students parts of speech, subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules and sentences. You have 2 to 2.5 minutes. In first 30 to 60 seconds, you have to skim the content. In the next 90 to 120 seconds, you can use process of elimination as well as grammar rules, which will help you to solve reading filling the blanks. Now, the strategies which we teach are validated and proven strategies. What is the proof? The proof is in the ticker below. You can see that so many students have achieved their target score. So if they can achieve, you can also achieve your target score. And this is latest success stories where students have scored 90, 87, 86, 82 and 81. So if they can achieve, you can also. Or we are not showing the 7 bands or 6 band holders, else ये बहुत ज़्यादा slide बहुत ज़्यादा fulfilled हो जाती है, right? This is our WhatsApp number 8699121121. You can contact us if you have any questions or doubts, or if you want to take online coaching. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.